میں خدمت حاضریں سیشنبے روچا پاکستان تہا لاتے انچے رپورٹ کے معنی گوشت کریں کہ قیاس آرائی یا افواہی سرا مشتمل تھا یہ رپورٹانی یک انچے داری بچ بوت مردم ہمیں سرپت بیاگا لگے تھا کہ اسیں حکومت نی رو گئیں پرچہ کہ یہ رپورٹانی تہا یہ بھی گپ مانا کہ صدر آصف زرداری استعفیٰ دے گئے یہ رپورٹان پد مدد کے ہما روچا وتی علاج سلسلے آصف زرداری دبئی شد پدا یہ رپورٹاں نی تہا سکباس تیزیت پرچہ کہ ہما روچا امریکہ یک جریدی تہا بھی گپ مانا کہ آصف زرداری وتی طبی معاملات آنی بدولتا استعفیٰ دنتے پرچہ کہ میمو گیٹ اسکینڈلے اوالیا استیں صدر سکباز ذہنی دباوتا استیں میمو گیٹ اسکینڈلا بنیاد بنے نگبوتا اور ای حوالے میں بچارے کے پدا مسلم لیگ نون سپریم کورٹا شتا حزب اختلاف درائیں جماعت ہمیں مطالبہ کرنے گیا کہ اکانی یا آصف زرداری اگائشی تو کا ملوث ہستا تو آرٹیکل 6 سے تحت بغاوت مقدمہ اشانی خلاف درج کنک بھی ای وڑے جاورال پاکستان تاستا حکومت اوالیا شیچ پیسرا بھی ما بچارے حزب اختلاف جماعت بدعنوانی بھی یا بیڈ گورننس بھی یا دیکھیں انچے معاملات بھی اقربا پروری بھی حکومت سرا الزامات جن گیا او حکومت مجبور کن گیا کہ وقتا چے پیسرا بائدیں استعفیٰ بدا وہ دومی نے مگا ما بچاریں کہ پاک امریکہ سخ سلترین دوریا چے جو شدی تعلقات گوزر گیا تو پدا نیٹوئے جاریت بھی کہ پاکستانی سیکیورٹی سرا بت گیا آئی چیز بد صورتحال سکباز پاکستان تہا نگے گا اور آصف زرداری یہ معاملہ تو کا سخت دباؤ تو کا ہم استیں پرچہ کے تجزیہ نگار ہمیں گوش گیا کہ نو وقت تک کا یہ حکومت بروتے بھلے پاکستان پیپلز پارٹی یہ والیا ادراہیں قیاس آرائی یا افواہیں رد کرنے گیا وہاں گوش گیا کہ صرف اور صرف یہ گپ صرف قیاس آرائیاں اشانی تو کا ایچ وڑیں صداقت نیستیں بھلے اگا یقیناً ما سرپت بھئی ای گپانی تو کا چشیں بازیں صداقت ما مارا جانیا ہے کہ استے صدر آصف زرداری استعفیٰ بدان یا مستقبل استعفیٰ دات خود کا بھلے ای گپ حقیقت ہے کہ آلات شر نیا وش نیا او حکومت سرا سخت باز دباؤ وسطیں آصف زرداری سرا بھی سخت باز دباؤ وسطیں گلے چاروکاں مرچی کی مراغا شاہ مامے بابتا گپتران کنگا رہو گئے میں گونا ٹیلی فون لائن سرا امراداری کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی ایک سینئر رانمائی او ایم این اے واجہ گل محمد جاکرانی. السلام علیکم گل محمد جاکرانی صاحب. جی وعلیکم السلام. جاکرانی صاحب آصف زرداری کے استعفیٰ کے متعلق بڑی قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ طبی معائنہ کے حوالے سے آصف زرداری صاحب دبئی گئے ہیں اب وہ اس کو بہانہ بنا کر وہ استعفیٰ دیں گے ان باتوں میں کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں یہ ان باتوں میں کوئی بھی صداقت نہیں ہے یہ ایک خام خیالی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہاں جو جمہوری عمل ہے وہ بہت بڑی قربانیوں کے بعد یہاں جمہوریت بحال ہوئی ہے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا بہت بڑا رول ہے جنہوں نے اپنے زندگیاں دے دی ہیں یہاں کے عوام کے لیے اور ڈیموکریسی لیے. شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا کردار تاریخ کا ایک حصہ ہے اور ان کی شہادت ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے اور صدر آصف علی زرداری صاحب ان کے فالوور ہیں اور اس پارٹی کے کو چیئر پرسن ہیں. ان کے جمہوری عمل کو ڈیریل کرنے کے لیے یہ آج سے کوشش نہیں ہے جب سے جمہوریت اس ملک میں لاگو ہوئی اسی دن سے جو نان ڈیموکریٹک فورسز ہیں یا جو
हमेशा चोर दरवाजों से हुकूमतों में आए हैं, वो हमेशा ये कोशिश करते रहे हैं और उन्होंने मीडिया के जरिए कुछ उनके मनपसंद जो लोग हैं उनके जरिए ऐसी अफवाहें फैलाते रहे। ये पहली बार नहीं है, आपको पता है कि 2-3 साल पहले भी ऐसी अफवाहें फैलाई गई हैं, कोई जहाज आ गया है जिसमें सदर साहब भी जा रहे हैं, सलाम भी हो रहा है और ये हुकूमत लेकिन जाकरानी साहब अफवाहें फैलने वो झूठ का झूठ हो गई, ये झूठ है, ये मनपसंद, ये सारा इल्जाम जो लगाया गया है ये सारे साबित हो रहे हैं क्योंकि सदर साहब की तबीयत की खराबी की वजह से उनके जो डॉक्टर हैं वो वहाँ उसको दिखाने के लिए गया है। अभी तो सारी चीजें सामने आ रही है। मैं कहता हूँ वो सदर जब वापस आएगा इन लोगों को डूब बनना चाहिए अगर उसको कोई हया शर्म है तो। लेकिन जाकरानी साहब कयास आराई या अफवाहें फैलाने के हवाले से भी कुछ ग्राउंड रियलिटी होती है ना, जब अफवाहें फैलती हैं या कयास आराई या फिर बनती हैं, ये सिलसिला जब शुरू होता है मतलब कुछ ग्राउंड रियलिटीज भी होती हैं ना। अब आसिफ जरदारी साहब के हवाले से जो स्टेटमेंट्स आ रहे थे उनमें बहुत ज्यादा तजाद था, मतलब हुकूमत भी इस हवाले से वाज़ेह पॉलिसी नहीं अपनाती ना, वाज़ेह स्टेटमेंट उसका नहीं आता, जिसकी वजह से जो कयास आ रही हैं वो मजबूत होती हैं। अगर हुकूमत की तरफ से वाज़ेह एक स्टेटमेंट आता आसिफ जरदारी के हवाले से तो मैं नहीं समझता कि कयास आ रही हैं में इतनी जान होती, लेकिन आपकी तरफ से भी तो बहुत सारी गलतियां होती हैं ना, जिसको जवाब बनाकर मीडिया फिर आप कहते हैं कि जी मीडिया की तरफ से कयास आ रही हो रही हैं। नहीं, कोई भी ऐसी गलती नहीं हुई है। जो पहले दिन से सदर साहब बाहर गए हैं तबीयत की नासाजी की वजह से वो गए हैं और दुबई के हॉस्पिटल में हैं, उनके जाती जो मुआलिज हैं वो भी उनके साथ थे, तो ऐसी कोई बात नहीं थी जिसमें ये कहा कौन सी बात की गई थी। ये झूठ की फैक्ट्रियां बनाए बैठे हैं और उसमें अपने मर्जी के वो बातें करते रहते हैं, लेकिन झूठ का कोई सुरमो कोई पैर नहीं होता है उसका। वो जाहिर बात है कि जो आदमी बात करता है तो उसका आखिरकार रिजल्ट तो सामने आता है ना। तो पहले भी मैंने जब आपको तज़किरा किया, आपको याद होगा किसी मखसूस टीवी चैनल ने ये कहा था ना, आपको याद है कि जहाज आ गया है, सदर साहब जा रहा है पार, ये कब की बात है? 2-2.5 साल पहले की बात है ना। अभी भी उनको शर्म आना चाहिए, सदर साहब की बीमारी की हालत में वो अपने दिखाने के लिए वो बाहर गया है, उनको पता है, लेकिन अवाम को गुमराह बनाने के लिए ये ख्याल ख्वाब है उनके, ये अधूरे ही रह जाएंगे। ये जमहूरी अमल जो है अपना प्रोसेस में चल रहा है, ये अपना टाइम पूरा करेगा। ये पहले जो दिन गिनते आ रहे थे, अभी इंशाल्लाह 4 साल होने वाले हैं, इंशाल्लाह 5 साल के अंदर जो इंतखाबात के टाइम होगा अवाम के पास जाएंगे और उसमें इनको अभी यही है कि क्योंकि आने वाले दिनों में जो आने वाला इलेक्शन है उसमें भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को भारी अक्सरियत हासिल होगी और आइंदा जो हुकूमत आने वाला है वो भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और डेमोक्रेटिक फोर्सेस का इंशाल्लाह बनेगी। चलिए, अगर आप कहते हैं कि ये सदर से मुतालिक ये जो बातें सारी कयास आ रही हैं, अफवाहें हैं, मान लेते हैं, लेकिन आप इस बात को तो डिनाई नहीं करोगे ना कि हुकूमत इस वक्त शदीद दबाव में है। आप क्या समझते हैं कि सिर्फ मेमो गेट स्कैंडल इसका सबब है और भी इसके असबाब हो सकते हैं? कोई हुकूमत किसी दबाव में नहीं है। ये मेमो गेट स्कैंडल जो है ये इसका न कोई सुर है, न कोई मुंह है, न कोई टेर है और ये एक ऐसा आदमी है जिसका कोई उनका क्रेडिबिलिटी नहीं है। एक मंसूर एजाज के नाम एक आदमी है, वो एक झूठ फैला रहा है। वो पहले भी उनके एक बहुत सारे झूठों के दास्तान है। उन्होंने 15 साल तक यहाँ के इदारों के खिलाफ, ISI के खिलाफ, मिलिट्री के खिलाफ बहुत खूब लिखा है, वो रिकॉर्ड के हिस्से हैं। क्या वो उन लोगों को भूल गए हैं? इतना झूठा आदमी, एक उसने कहानी बनाई है, लेकिन फिर भी हुकूमत ने उसका नोटिस लिया है, अपना जो सफीर है उसको बुलाया है और उनको कहा कब तक इंक्वायरी। नोटिस नहीं लिया ना जाकरानी साहब, अगर नोटिस हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करता, शुरू में नोटिस ले लेता इस बात को और संजीदगी का मुजाहरा करता, अपनी जिम्मेदारी का एहसास करता, हुकूमत तो इतना बड़ा मसला नहीं बनता ना। अब तो बाद में जब ये बहुत ज्यादा एक शोर शराबा हो गया उसके बाद हुकूमत ने नोटिस लेना शुरू किया ना, ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनती ना। नहीं मेरे भाई, पहले दिन से ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में, हम भी वहां मौजूद थे, पार्लियामेंट के फ्लोर पे उनको कॉन्फिडेंस में लिया, उनको बताया कि इसी हवाले से हमने अपने सफीर को यहाँ बुलाया है और सफीर को जब बुलाने की बात की गई, यही लोग या जो झूठों को फैक्ट्रियों बनाते हैं वही कह रहे थे कि सफीर नहीं आएगा, वो वहाँ सियासी पना लेगा, लेकिन वो जब आ गया तो उनको गैर जानिबदार इंक्वायरी के लिए उनसे इस्तीफा ले लिया गया ताकि इंतखाब जो है वो गैर जानिबदार होना चाहिए। फिर वही लोग कहने लगे कि इस्तीफा क्यों लिया गया है। तो इनका जो भी आप कैसे जो भी अच्छे काम करें उनके लिए तो वो अच्छे आपको नजर नहीं आएंगे क्योंकि उनको जमहूरियत रास नहीं आती है। हुकूमत ने पहले दिन से नोटिस लिया है, अभी भी दिफाई कमेटी के
पास मामला है और उनकी मीटिंग एक आज भी हुई है, 13 तारीख मीटिंग हो रही है। ऐसे जो मामलात हैं वो ज़ाहिर है एक सेकंडों में हल नहीं होते, उसमें टाइम तो लगता है, एक प्रोसेस होता है, एक अमल होता है। अभी कोई कहे कि उनके पास कोई हल बताएं किस तरीके से हो सकता है। तो ये वही लोग हैं जिन्होंने हमेशा नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के जरिए इक़्तिदार के मजे लूटे हैं, चोर दरवाजों से आकर। ये वही खेल खेल रहे हैं और लोग और अवाम, पाकिस्तान के अवाम उनको अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा जाकरानी साहब, जिस तरह आपने कहा कि मीडिया एक खास हल्का इसको बड़ा चढ़ाकर पेश आ रहा है, आप मुझे बताएं कि मीडिया का एक जो खास हल्का है, ये जो कयास आ रही हैं, ये जो अफवाहें, इनको मिर्च मसाले लगाकर दुनिया के सामने, पाकिस्तानी के सामने पेश करने की कोशिश की जा रही है, आप मुझे बता दें कि क्या ये जमहूरियत की खिदमत है या जिन मखसूस मीडिया पर आप ये इल्जाम लगा रहे हैं, क्या उनके मकासद हैं, वो क्यों इस तरह करना चाह रहे हैं? भाई मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि इनका मकसद सामने वाज़ेह है। उनका मकसद है किसी भी तरीके से ये जो जमहूरी अमल है इसको नाकाम बनाया जाए, इसको डिरेल किया जाए और वहाँ यहाँ कोई बांग्लादेश के तरीके का कोई हुकूमत बने जिसमें से वो उन चोर दरवाजों से नहीं, लेकिन मीडिया को जो अभी आजादी है, थोड़ी बहुत जो आजादी मिली है वो डेमोक्रेटिक दौर में मिली है, तो वो किस तरह, मतलब वो अपनी आजादी को सलब करना चाहेंगे, किस तरह इस जमहूरियत को डिरेल करने की कोशिश करेंगे? उनका न कोई दीन है, न कोई धर्म है, न कोई मजहब है, उनको ये यहाँ के सहाफत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये जर्द सहाफत में काम कर रहे हैं। उनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं, इनको लिफाफे मिलते हैं और रात को वो लिफाफे लेकर और फिर नाचते हैं और बहुत बड़े बड़े बातें करते हैं लिफाफों के बुनियाद पर। उनका लिफाफा बंद हो जाएगा, उनकी बात बंद हो जाएगी। तो फिर आप लोग कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते? नहीं, वो हम कहते हैं वो भली जितना उनको झूठ बोलना है, लेकिन झूठ का कोई मंजिल नहीं होता है, वो एक्सपोज होंगे और लोग खुद उनके ऊपर जो है ना वो लानत मलामत खुद करेंगे। अच्छा, ये सदर साहब ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की ख्वाहिश जाहिर की थी आफ्टर मुहर्रम, फिर इसके बाद अचानक जो तिब्बी मुआयने के हवाले से जो सदर साहब बाहर गए, अब क्या इरादा है? क्या सदर आसिफ जरदारी ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास बुलाने का इरादा बिल्कुल मुलतवी कर दिया है या उनकी तबीयत बेहतर होगी, वो आएंगे और दोबारा पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाएंगे? देखो, ये बिल्कुल सदर साहब का यही ख्याल था, लेकिन अचानक सदर साहब की तबीयत खराब हो गई, लेकिन अभी उनकी तबीयत बेहतर हो रही है तेजी से। जैसे वो वापस आएंगे तो इसी सिलसिले में फैसला किया जाएगा। क्या खास एजेंडा क्या होगा जकरानी साहब? पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास है या जो भी इश्यूज रेज हुए हैं वो सारे क्योंकि पार्लियामेंट को एतमाद में लेना चाहता है, वो जैसे वापस आएंगे उसी सिलसिले में डिसाइड किया जाएगा। नहीं, लेकिन मेमो गेट स्कैंडल तो सुप्रीम कोर्ट में भी है, और क्या मतलब इशू तो सबसे बड़ा इस वक्त मेमो गेट स्कैंडल है, वो तो सुप्रीम कोर्ट में है, फिर उसको पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में डिस्कस करने की क्यों जरूरत पेश आ रही है? पार्लियामेंट जो है उसको वो बालादस्त है, वो सबसे सुपीरियर है क्योंकि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का हिस्सा है। इसका मतलब नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया है और जो लोग लेके गए हैं उनका मकासद क्या है, क्योंकि पहले ही दिफाई कमेटी के पास ये मामला था, वो ऐलान प्राइम मिनिस्टर कर चुके हैं और ये वही लोग हैं, शिकस्त खोरदा लोग हैं जिन्होंने हमेशा कोशिश की डेमोक्रेसी को डिरेल करने के लिए, और वही लोग हैं जिन्होंने छुपकर रात के अंधेरे में जाके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात की थी और उनको जो मशवरे दिए थे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मानने से इनकार किया था। तो उसके बाद उन्होंने आर्मी के खिलाफ बातें करने शुरू की थी। अभी उन्होंने जुडिशरी को बदनाम करने के लिए, उसको सियासी अखाड़ा बनाने करने के लिए एक जो मामला पार्लियामेंट में हल हो रहे हैं वहां जाने की कोई जरूरत ही नहीं थी, लेकिन उन्होंने कोर्ट को सियासी अखाड़ा बनाने की कोशिश की है और इंशाल्लाह वो भी उनके अज़ाइम नाकाम हो जाएंगे और जो कोर्ट के जज साहब हैं उनकी विजनरी सोच है वो उनको जरूर पहचान जाएंगे, उनकी साजिश को समझेंगे। अच्छा जाकरानी साहब, आपको याद होगा कि आसिफ जरदारी ने यहाँ मज़ार कायद पर एक जलसे से खिताब करते हुए कहा था कि अगर मैं ऐवान सदर से जाऊंगा तो एम्बुलेंस में बैठकर जाऊंगा। अब ये कहा जा रहा है कि चूंकि ऐवान सदर से वो एम्बुलेंस के बजाय एयर एम्बुलेंस में गए हैं तो अब उनका जाना ही है, क्या कहते हैं आप? वही लोग थे जिन्होंने पहले काफी सालों से एक ये जो फार्मूला दिया था -1, वो आपको याद होगा, इसी हवाले से जो वो वर्कआउट कर रहे थे और अफवाहें फैला रहे थे, उसी हवाले से उन्होंने वादे किया था कि हमने जमहूरियत के लिए लड़ाई लड़ी है। और जिनको ये ख्याल है तो ये -1 कोई फार्मूला है और किसी आदमी के कहने पे कोई सदर इस्तीफा देगा और चला जाएगा, या उसने कहा कि ये मुमकिन ही नहीं है। यहाँ अगर कोई लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, एम्बुलेंस के जरिए हम जाएंगे, वैसे हम नहीं जाएंगे किसी
बहुत शुक्रिया मोहतरम गुल मोहम्मद जाकरानी साहब आपका। गुले चारों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एम ने गुल मोहम्मद जाकरानी गुश गए कि दुराएं काया साराइयाँ और अफवाहें ये अमा कुवतें अमा मरदमा के नलूट गए कि ये जमहूरियत देमा बरो और हमेशा ये कोशिश करना कि जो ना जमहूरियत डीरेल वे करना और हमें हवाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साबित कदम बह गए और रंचो के आसिफ जरदारी इस्तीफ़ा गप बह गया इसे रद्द करने गया और गुशें कि बिल्कुल आसिफ जरदारी इलाज है हवाले दुबई शुता और 2-4 रोची तो का अब पदा कहते हैं पदावती जिम्मेदारियां ना शुरू करते हैं। गुले चारों का मरागश में कंटिन्यू दे मराव गए माजूने तो गोंडे ब्रेक की ब्रेक अपत बदश में साड़ी गई।